Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4. And the name of the chapter is prediction. The meaning of prediction is the action of predicting something, means Bhavishwani. So, first we'll read something about this chapter. This is the story about the prediction of an astrologer and it's coming to be true. An astrologer declared the child of a poor man to be married with the daughter of the king. The news reached to the king. He tried to kill the child, but ultimately the prediction came to be true. Now, what happened in this story? In this story, there is an astrologer who predicted about a child of a poor man, that the boy will be married to a king's daughter, and somehow the king got to know about this prediction and he got very angry and he tried to kill that child, but somehow in the end he saw that the boy was married to his daughter. Somehow the prediction came to be true. वॉट हैपेंड इन दिस स्टोरी कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है और वो अपनी प्रिडिक्शन करता है कि एक गरीब इंसान का, एक गरीब आदमी का एक बेटा है जिसके फ्यूचर में क्या लिखा है कि जब वो बड़ा होगा तब वो एक किंग की डॉटर से शादी करेगा। और ये प्रिडिक्शन, ये न्यूज़ किंग तक पहुंच जाती है और जब किंग को पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि ही विल किल दैट चाइल्ड, कि वो उस बच्चे को मार देगा। बट सम हाउ इन द एंड वो देखता है कि उस लड़के की शादी उसकी बेटी से ही हुई है और जो प्रिडिक्शन की गई थी वो सच हो गई है। नाउ वी विल रीड दैट हाउ दिस प्रिडिक्शन केम ट्रू। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रिडिक्शन जो की थी वो सच कैसे हुई। Once upon a time there lived a poor man. He had a son. He had belief in the astrologers, so he went to one. The astrologer, predicting the fortune, said that when he would be 18 years old, he would marry the king's daughter. Now, once upon a time there was a poor man. He had a son and he used to believe in astrologers. एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जिसका बहुत ज़्यादा विश्वास था एस्ट्रोलॉजर्स में, जो भविष्यवाणी करते हैं उन लोगों में। सो ही वेंट टू वन एस्ट्रोलॉजर एंड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट व्हेन हिज सन विल बी ऑफ 18 years old ही विल मैरी अ किंग्स डॉटर। और उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाएगा तब उसकी शादी एक किंग की बेटी से होगी। As luck would have it, the king of the land passed through the village in the disguise and asked if there was any news. The people informed him the boy's fortune. The king was very furious. He never wanted the princess to get married to the son of a poor man. He went to the child's cottage and offered a great deal of money to his parents and took the child. Now what happened? King somehow got to know about this prediction, and after listening to this prediction he was very angry and furious, and he decided that he will never let his princess marry that son of a poor man. And what he did, he went to the parents of that child and he offered them a lot of money and took the child from them. अब क्या हुआ, किंग को एक बार किसी दिन पता चल गया कि एक बच्चा है और उसकी किस्मत में ये सब लिखा गया है, यहाँ ये सब प्रिडिक्ट किया गया है, तो वो अचानक से वहीं पहुँच गया। अब जब वो चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी की शादी एक गरीब बच्चे से हो, इसीलिए वो सीधे उसके पेरेंट्स तक पहुँच गया और उसके पेरेंट्स को उस किंग ने बहुत सारे पैसे ऑफ़र किए। और जब वो पैसे ऑफ़र किए उसके बदले क्या मांगा कि उनका बेटा उसे दे दो। Now king took that boy with him. अब वो जो king था उसके पास उनका बेटा था और वो साथ ले गया। The king put the boy into the box and threw him into the river. The box floated on the water down the stream. About 2 miles from the king's capital, it stuck with a projecting hillock beside a mill. The miller and his wife had no child. They accepted the child as God's gift to them. They brought up the little child with care and loved him. Now what happened?
किंग पुट द बॉय इनटू अ बॉक्स एंड थ्रू हिम इनटू द रिवर। किंग ने क्या किया, किंग ने उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद किया और पानी में, रिवर में फेंक दिया। एंड द बॉक्स फ्लोटेड टिल द हिलॉक। जो बॉक्स था वो पानी में फ्लोट करते करते एक हिलॉक यानी छोटी पहाड़ी तक पहुंच गया, जिसके पास में ही एक मिल थी। एंड देयर लिव्ड अ मिलर एंड हिज वाइफ। जहाँ पर एक मिलर और उसकी वाइफ रहते थे, जिनका कोई बच्चा नहीं था। एंड व्हेन दे सॉ दैट चाइल्ड दे एक्सेप्टेड द चाइल्ड एज अ गॉड गिफ्ट। और उन्होंने उस बच्चे को एक गॉड गिफ्ट की तरह रख लिया। एंड दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिम। और इसीलिए उन्होंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया और उससे बहुत प्यार करने लग गए। After 17 years, the king chanced to come to the miller and asked them if the boy was his son. The miller told him the story. The king had soon guessed that this was the child who he had tried to kill. Now, after 17 years, one day the king went to the miller. When he looked at his son, he asked about his son. And now Miller told him the true story. And the king had guessed that he was that child who he had tried to kill. अब अचानक से 17 ईयर्स के बाद जो किंग था वो मिलर के पास गया और मिलर से पूछा, जब उसने उसके बेटे को देखा तब मिलर से पूछा कि क्या ये बेटा उसका है। तब मिलर ने किंग को सारी स्टोरी सच सच बता दी। फिर किंग को समझ आ गया कि ये जो बच्चा है ये वही बच्चा है जिसको किंग ने मारने की कोशिश की थी। द किंग सेड, ही इज़ वेरी गुड, कैन यू गिव हिम टू मी टू कैरी अ लेटर टू द क्वीन। द मिलर एग्रीड। नाउ once again the king thought to kill that child because he never wanted the princess to get married to his son, to married to the son of a poor man. So he decided of another idea. And what was that idea? He asked the miller that he wanted the child to go to queen to pass a letter. अब उसके दिमाग में एक और आइडिया आया उस बच्चे को मारने का, उस लड़के को मारने का, बिकॉज उसे तो चाहिए ही नहीं था ना कि वो एक गरीब बच्चे, उसका एक वो गरीब का बेटा उसकी बेटी से शादी करे, एक प्रिंसेस से शादी करे। तो उसने एक दूसरा आइडिया सोचा। और वो दूसरा आइडिया क्या था कि उसने कहा मिलर को कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये क्वीन के पास जाए मेरा एक लेटर लेकर। एंड द मिलर एग्रीड। और मिलर मान गया। He sent the boy with a letter to the queen saying, as soon as you find this boy, kill him. And now what was written in the letter to the queen? When he wrote a letter to the queen, the letter was filled with the words that as soon as you find this boy, kill him. अब जो लेटर भेजा था किंग ने, उस लेटर में लिखा क्या था कि जितना जल्दी तुम्हें ये लेटर मिले, जितना जल्दी तुम्हें ये लड़का मिले, इसको मार दो। The young boy set out but lost his way. He reached a cottage. There was an old woman. She asked, who are you? What brings you here? Now the young boy went on his way. अब लड़का था वो तो चला गया अपने रास्ते पे, धीरे धीरे जाने लगा। एंड सडनली ही रीच्ड अ कॉटेज। ही लॉस्ट हिज वे टू द क्वीन। अब जहाँ उसको क्वीन के पास जाना था वो रास्ता तो भूल गया, तो वो अचानक एक कॉटेज पे पहुँच गया। एंड देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। शी आस्क्ड द बॉय दैट हु वॉज ही, कि वो लड़का कौन है। एंड ही सेड कि ये तुम यहाँ पर क्यों आए हो। द वुमेन आस्क्ड कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम कौन हो। The boy replied, I have lost my way to the palace. Will you give me shelter for the night? And the boy replied that he had lost his way to the palace, कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, उसको किंग के जगह पे जाना था, किंग की प्लेस पे जाना था। अब he want to have a shelter for the night, कि अब उसे रात के लिए थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। The old woman said, this hut belongs to my son. He is a dacoit. He may not be good for you. Now, old woman said, this hut belonged to her son, and her son was a dacoit. अब
वो ओल्ड वुमेन क्या बोल रही है कि मैं ये जगह दे तो दूँ, लेकिन ये जो हट है, ये जो झोपड़ी है, ये मेरे बेटे की है, और जो मेरा बेटा है वो एक डकैत है, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. The boy was tired of his long journey. He requested the old woman to let him stay there. He needed to persuade her a lot. When she agreed, he placed the letter on the table and fell asleep. When the dacoit came, he took up the letter and read it. He came to know that the boy was going to embarrass death. Since he had enmity with the king, so he, moving to the next page. So we have come to next page. So he tore it up and wrote a fresh letter. As soon as the young man arrives, marry him to the princess. Now what happened? Now, when the boy said to have a shelter in that place, the woman denied that this place belonged to his son and the son is डकैत. जब उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर आराम करना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, तो वुमेन ने कहा कि नहीं, यहाँ ये मेरे बेटे की जगह है और यहाँ ये मेरा बेटा जो है वो एक डकैत है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. बट द बॉय सेड ही इज़ वेरी टायर्ड एंड ही वॉन्ट टू हैव शेल्टर. वो बहुत थक चुका है और उसे एक जगह चाहिए आराम करने के लिए. सो द वुमेन अग्रीड एंड द वुमेन प्रोवाइडेड हिम द प्लेस टू टेक रेस्ट. वुमेन जो औरत थी वो मान गई, वो लेडी मान गए और उन्होंने उसको वहाँ पे सोने की जगह दे दी. एंड ही वॉज हैविंग अ लेटर, उसके पास एक लेटर था. ही पुट दैट लेटर असाइड एंड ही स्लेप्ट, और वो सो गया. उसने एक लेटर जो था उसके पास उसने साइड में रखा और वो सो गया. एंड व्हेन द डकैट अराइव्ड दैट प्लेस, जब वो डकैट उस जगह पर आया, ही सॉ दैट लेटर एंड ही रेड दैट लेटर. उसने वो लेटर देखा और पढ़ा. वॉट वॉज रिटन इन दैट लेटर? दैट एज सून एज ही रीच द पैलेस ही विल बी किल्ड. उस लेटर में ये लिखा था कि जितना जल्दी वो वहाँ पे पहुँचता है उसे मार दिया जाएगा. नाउ द डकैट वॉज अवेयर ऑफ दिस एंड डकैट एज ही वॉज किंग्स एनिमी. अब डकैट कौन था? किंग का एनिमी था. तो जब वो किंग का एनिमी था तो वो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं. जो किंग चाहता है वो वही करेगा, जो किंग नहीं चाहता है उसका अपोजिट करेगा. तो इसीलिए व्हाट ही डिड, डकैट टॉर्न द लेटर. डकैत ने वो लेटर फाड़ दिया. एंड ही रोट अ फ्रेश लेटर. और अब फ्रेश लेटर में व्हाट ही रोट एज सून एज द यंग मैन अराइव्स मैरी हिम टू द प्रिंसेस. उसने क्वीन को लिखा कि जितना जल्दी ये लड़का आपके पास आए उसकी शादी प्रिंसेस से करवा दो. In the morning, he led him to the right way to the palace. The queen read the letter and married her daughter with him. Now in the morning, डकैट led him to the right way to the palace. जो डकैट था उसने सुबह ही उस आदमी को, उस लड़के को सही सही जगह ले जाकर पहुंचा दिया. And when he reached to the queen and he handed over the letter to the queen, और जब उसने वो लेटर क्वीन को हैंड ओवर किया तो क्वीन ने जब वो लेटर रीड किया, व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर? टू गेट, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर? दैट एज सून एज ही अराइव ही हैज़ टू मैरी हर डॉटर. कि जितना जल्दी वो वहाँ पहुँचेगा उसकी बेटी की शादी उससे होगी. एंड उसने वो लेटर रीड किया और अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी. A few days later, when the king returned to the palace, he saw the prediction come true. He was very upset and said to the boy, "You can live with my daughter if you descend to the cave and bring me 3 golden hairs from the giant king." And now a few days later, when the king returned to the palace, अब कुछ दिनों बाद जब king palace वापस आ गए, what he saw? He saw that married to his daughter. And he saw and now he felt that the prediction came true and he was very upset. And now he could do nothing, but he said to boy that you can live with my daughter, but what you need to do, you need to go to a cave and bring me 3 golden hairs from the giant king.
अब जब किंग थोड़े दिनों बाद पैलेस में वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी की शादी उस लड़के से हो रखी है। एंड नाउ ही वॉज वेरी अपसेट। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था, सो वॉट ही डिड, ही आस्क्ड द बॉय टू गो टू अ जाइंट केव टू अ जाइंट किंग। अब उसने क्या सोचा कि what he said to the boy, he wanted the boy to go to a giant king। वो चाहता था कि वो जो लड़का है वो giant king के पास जाए और वहाँ से 3 golden hair लेकर आए। The boy accepted the challenge and set out on his journey. At the first city gate, guards stopped him and asked, "Why is our fountain in the market dry?" Now the boy accepted the challenge and he set out on his journey and started his journey to the giant king। बॉय ने अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। एट द फर्स्ट सिटी गेट व्हाट हैपेंड, गार्ड स्टॉप्ड हिम। जो गार्ड्स थे उन्होंने उसको रोका और क्वेश्चन पूछा कि उनके जो जगह के जो फाउंटेन्स है वो ड्राई क्यों हैं, वहाँ के फाउंटेन, वहाँ के फव्वारे वहाँ सूखे हुए क्यों हैं, उनमें पानी क्यों नहीं है। The boy said, "I shall reply when I come back." What boy replied that when he'll come back, he'll reply then only। कि जब वो वापस आएगा वो तभी रिप्लाई करेगा। Then he resumed his journey and came to the second gate of the city. There the guard asked him, "Tell us why the tree which used to bear golden apples now does not produce even a leaf." Now when he reached to the second gate, the guard of the second gate asked him that जो ट्री यहाँ पर इतने सालों से है और जो गोल्डन एप्पल्स देता था आज वो एक लीफ भी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आई विल टेल इट व्हेन आई रिटर्न। फिर लड़के ने सेम जवाब दिया कि जब वो वापस आएगा तभी इसका आंसर देगा। सून ही वॉज टू द साइड ऑफ अ लेक, द ओर्समैन मार्क्ड, "Please tell me why I am bound to ferry over this lake and not being able to get my liberty." And now at last he reached to a lake। और वहाँ पर लेक पे पहुँचने के बाद ओर्समैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओर्समैन, अ रोवर, उसने पूछा कि मेरा यहाँ पर फेरी लगाने का ही काम क्यों है, मतलब मैं यहाँ पर इसमें फेरी ही क्यों लगाता हूँ, मैं अपनी लिबर्टी, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकता। आई विल टेल यू व्हेन आई रिटर्न, द बॉय रिप्लाइड। फिर से बॉय ने सेम रिप्लाई किया कि मैं जब रिटर्न आऊँगा तब मैं आपको इस चीज़ का आंसर करूँगा। द बॉय क्रॉस्ड द लेक एंड केम टू द केव वेयर द जाइंट लिव्ड। Giant king's grandmother at the door. She had a wrinkled face with warm affection in eyes. She asked him, "What do you want?" Now at last she reached to the cave where the giant lived। अब आखिर में वो वहाँ पहुँच ही गया जहाँ पे वो जाइंट रहता था। अब जाइंट किंग, वो उस किंग की जो ग्रैंड मदर थी वो उस दरवाजे पे ही बैठी थी और उनका एक झुर्रियों वाला फेस था और आँखों में बहुत प्यार भी भरा हुआ था। She asked him, "What do you want?" उन्होंने उससे प्यार से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। The boy replied, "3 golden hairs of the giant king." उसने बहुत ही प्यार से कहा कि मुझे 3 गोल्डन हेयर चाहिए उस किंग के। Moving to next page. So we have come to next page. The grandmother said, "I will help you whatever I can." The boy asked her about the 3 questions he was asked on the way. Then she changed the boy into an ant। द ग्रैंड मदर सेड, "आई विल हेल्प यू वॉट एवर आई कैन।" अब ग्रैंड मदर ने कहा कि ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ उतनी हेल्प करूँगी। अब बॉय ने क्या किया, उससे उन 3 क्वेश्चंस के बारे में पूछा जो क्वेश्चंस उससे रास्ते में पूछे गए थे और उसके बाद उस औरत ने, उस ग्रैंड मदर ने उस लड़के को एक चींटी में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। At night the giant returned. He laid his head in his old grandmother's lap and fell asleep. As soon as he began to snore, then she pulled 3 golden hairs and gave it to the boy and also answered the 3 questions. अब जैसे ही रात में वो जाइंट किंग वापस आया, वो अपने ही दादी के गोद में सर रखकर सो गया। As soon as he began to snore, जैसे ही वो खराटे लेने लगा, she pulled 3 golden hairs। उसकी दादी माँ ने उसके सर से उसके 3 गोल्डन हेयर निकाले और उस लड़के को दे दिए और उनको
वो सारे आंसर्स भी दिए जो उस लड़के ने पूछे थे. In the morning, when the giant had gone away, the old woman changed the young man into himself again. He thanked the old lady and set off on his journey back to the palace. And now he thanked the old lady, the grandmother of the giant, and he set off on his journey back to the palace. अब उसने उस grandmother को thank you बोला और वो फिर से वापस आने के लिए उस अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट ही रीच्ड टू द थर्ड गेट. जो थर्ड गेट था उस पर वो सबसे पहले पहुंचा और उस पर क्या पूछा गया था उससे कि जो फेरी मैन है उसका क्या ड्यूटी है यहीं पे रहना, क्या वो इंडिपेंडेंस नहीं ले सकता. तो उसने उस फेरी मैन को आंसर किया कि वो अपने ओर्स मीन्स जो बोट्स हैं जिस पे वो फेरी लगाता है. हम किसी भी लेक पे जाते हैं तब हमें फेरी लगाने वाले जो बोटमैन होते हैं वो मिलते हैं. तो उसने कहा कि तुम अपनी ये फेरी लगाने वाली जो बोट्स हैं इनको किसी पैसेंजर को छोड़ जाओ और खुद भाग जाओ. देन ही केम टू द सेकेंड सिटी गेट. और फिर वो सेकेंड सिटी गेट पे आया. वहाँ पर उससे क्या पूछा गया था कि जो ये पेड़ है, जो ट्री है, वो एप्पल्स क्यों नहीं दे रहा अब. तो वहाँ पे उसने क्या आंसर किया कि किल द माउस एट द रूट, कि जो रूट पे, जो उसकी जड़ों पे जो माउस है उसको मार दो. देन ही केम टू द फर्स्ट सिटी गेट वेयर द फाउंटेन हैड ड्राइड अप. और फिर वो वहाँ पे फर्स्ट सिटी गेट पे आया जहाँ पे उससे ये पूछा गया था कि जो फाउंटेन है वो इतना सूखा क्यों है. एंड द रिप्लाई वॉज टू रिमूव द टोड फ्रॉम द होल. टोड मीन्स मेंढक. तो उस होल में से मेंढक को हटा दो. एट लास्ट ही रीच्ड द पैलेस. His wife rejoiced greatly. He gave the 3 golden hairs to the king. The king now accepted him as the husband of his daughter. And when he returned to the king's palace, his wife, means the princess, was very happy to see him back. And he returned those 3 golden hair of king to the king. And the king was very happy now, and now he accepted him as his son-in-law, as the husband of his daughter. Thus the young man lived happily ever after with his beautiful wife. और फिर वो लड़का और वो प्रिंसेस हमेशा के लिए साथ में खुशी खुशी रहने लग गए. I hope you have understood the story. Yes, the story was a bit interesting. Please watch this video twice or thrice to understand it better. We'll discuss question and answers in our next class.